بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، دور کسی بستی میں ایک آدمی رہتا تھا جو پیشے کے لحاظ سے کپڑے کا تاجر تھا۔ تاجر کو اللہ نے بہت ساری دولت سے نوازا تھا۔ وہ ہر محتاج کو اپنی دولت سے کچھ نہ کچھ ضرور دیتا تھا۔ اس کی خیرات اور سخاوت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور غریب و نادار لوگ اس کے گھر کے سامنے جمع ہونے لگے، اس کے واپس آنے کا انتظار کرتے کہ وہ ان کی مدد کرے اور ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ یہ سلسلہ صرف اس کے گاؤں کے غریبوں تک محدود نہ رہا، بلکہ پڑوسی گاؤں کے محتاج بھی اس کے پاس آنے لگے۔ اس کی بیوی اس کی اس عادت سے خوش نہیں تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ وہ اپنی دولت کو اس طرح ضائع کرنا بند کرے اور صرف اپنے گاؤں کے غریبوں کی مدد تک محدود رہے۔ تاجر نے جواب دیا، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا رب مجھ سے نہ پوچھے کہ میں نے اس دولت سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیوں نہ کی جو اس نے مجھے عطا کی۔ بیوی نے کہا، اگر تم اسی طرح دولت خرچ کرتے رہے تو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ہم خود ان غریبوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس بار تاجر نے بیوی کو کوئی جواب نہ دیا، بس اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور دعا مانگی، اے اللہ، تو نے مجھے دولت دی اور میں نے اسے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اب جبکہ میرے پاس کچھ نہیں تو میری رہنمائی فرما کہ میں تیری مرضی کے مطابق چلوں۔ دن گزرتے گئے اور تاجر اپنی کمائی سے زیادہ خرچ کرنے لگا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب اس کی دولت ختم ہو گئی۔ اس نے اپنی دکان بند کر دی اور اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا۔ ایک دن اس نے سوچا، شاید میری بیوی ٹھیک کہتی تھی، اگر میں نے اس طرح خرچ نہ کیا ہوتا تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ لیکن پھر اس نے فوراً یہ سوچ ترک کر دی، اپنے رب سے استغفار مانگا اور کہا، مجھے نیکی کرنے پر کبھی پچھتانا نہیں چاہیے۔ اگر میرے پاس اب 1 درہم بھی ہوتا تو میں اسے بھی خرچ کر دیتا۔ اب تاجر خود غریب ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ بھیڑوں کی رکھوالی کا کام شروع کرے۔ باوجود اس تنگ دستی اور غربت کے اس نے کبھی اپنی نیکیوں پر پچھتانا نہ کیا۔ دوسری طرف اس کی بیوی اسے اس کی حماقت پر طعنے دیتی اور اس کی حالت پر تنقید کرتی۔ ایک دن اس نے کہا، اب ہم اسی طرح کے غریب ہو گئے ہیں جن پر تم ترس کھاتے تھے۔ تاجر نے جواب دیا، ہمارے پاس اب بھی صحت ہے اور یہ دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ بیوی نے اس کی بات پر ہنسی اڑائی اور کہا، مجھے صرف یہ فکر ہے کہ تم کھانے اور کپڑوں کا بندوبست کرو، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گی کیونکہ میں غربت برداشت نہیں کر سکتی۔ تاجر نے بیوی کی باتوں پر غصہ نہ کیا کیونکہ وہ ایک نیک دل انسان تھا۔ وہ اس کی سختی کو معاف کر دیتا تھا کیونکہ وہ عیش و آرام کی زندگی کی عادی تھی۔ تاجر خود بچپن میں غربت دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ دولت نے اس کے مزاج کو کبھی تبدیل نہ کیا۔ ایک دن جب وہ اپنی بھیڑوں کو چرا رہا تھا، سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگوں کی چادر بچھ رہی تھی۔ وہ ایک تنہا پہاڑی پر بیٹھا تھا جہاں سے نیچے وادی میں ایک چھوٹا سا دریا بہتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنی غربت کے باوجود بھی اپنے رب کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اس نے اپنی چھڑی زمین پر رکھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، تو نے مجھے دولت دی اور میں نے اسے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اب جبکہ میرے پاس کچھ نہیں تو میری رہنمائی فرما کہ میں تیری مرضی کے مطابق چلوں۔ اس کی دعا ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہے۔ اس کے سفید بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ ایک سادہ سی چادر اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی آگ جل رہی تھی۔ ابراہیم کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہوئی۔ اس نے اپنی بھیڑوں کو ایک محفوظ جگہ پر چھوڑا اور دریا کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو بوڑھے نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ابراہیم، تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ ابراہیم حیران ہوا کہ اس اجنبی کو اس کا نام کیسے معلوم ہے۔ اس نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، بابا، آپ مجھے جانتے ہیں؟ بوڑھا درویش ہنستے ہوئے بولا، میں تیرے دل کی نیکی کو جانتا ہوں۔ تیرے عمل کی خوشبو یہاں تک پہنچی ہے۔ بتا کیا بات ہے؟ تیرے چہرے پر غم کی پرچھائیاں ہیں۔ ابراہیم نے اپنا سارا حال سنا دیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس نے اپنی دولت غریبوں پر خرچ کی، کیسے اس کی بیوی اس سے ناراض رہی اور کیسے اب وہ خود غربت کی زندگی گزار رہا ہے۔ درویش نے خاموشی سے سنا اور پھر کہا، ابراہیم، تیری نیکی نے تجھے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اللہ تیرے صبر اور ایمان کی آزمائش کر رہا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری تقدیر بدلے تو ایک سفر پر نکلنا ہوگا۔ ابراہیم نے پوچھا، کون سا سفر بابا؟ تو درویش نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر ایک رازدارانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کوئی راز کھولنے والا ہو۔ اس نے دریا کے کنارے ایک دور دراز پہاڑ کی طرف اشارہ کیا
जो उफक पर धुंध में लिपटा दिखाई दे रहा था। इब्राहिम, तो एक लंबा और दुश्वार सफर पर जाएगा। वहां एक गहरे जंगल के बीचों बीच एक गार है जहां मैंने कई साल पहले एक खजाना छुपाया था। मैंने फैसला किया था कि मैं इस खजाने के बारे में सिर्फ उसे बताऊंगा जो इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, और मुझे वो तुझसे बेहतर कोई नजर नहीं आया। वो खजाना तकदीर बदल सकता है, लेकिन खजाना पाना आसान नहीं। वो जगह बहुत दूर है, वहां पहुंचने के लिए तुझे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं जैसा बूढ़ा तो अब वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। इसके बाद दरवेश ने उसे सारा रास्ता समझाया। इब्राहिम के दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। वो जानता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। उसने दरवेश से पूछा, बाबा, इस सफर के लिए मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? दरवेश ने जवाब दिया, तेरा ईमान तेरी सबसे बड़ी तैयारी है। कल सुबह जब सूरज तुलू हो, तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सफर पर निकल जाना। इब्राहिम ने दरवेश का दिल से शुक्रिया अदा किया और फिर घर वापस आया। उसने अपनी बीवी ज़ैनब को सारी बात बताई। ज़ैनब ने गुस्से से कहा, इब्राहिम, तुम अब भी अपनी बेवकूफियों से बाज नहीं आए। हमारे पास खाने को 2 रोटी भी नहीं और तुम एक नामालूम सफर की बातें कर रहे हो। इब्राहिम ने नरमी से कहा, ज़ैनब, ये मेरी आखिरी कोशिश है। अगर ये सफर हमारी जिंदगी बदल सकता है तो मुझे जाना चाहिए। ज़ैनब ने हंसते हुए कहा, जाओ, लेकिन अगर तुम खाली हाथ वापस आए तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने आसमान को सुनहरे रंग से रंग दिया, इब्राहिम ने अपना छोटा सा थैला, जिसमें कुछ रोटियां और पानी की मशक थी, घोड़े पर लादा और उसकी पीठ पर सवार हो गया। उसने घोड़े के कानों में सरगोशी की, चल मेरे साथी, हमें एक लंबा सफर तय करना है। घोड़ा तेजी से चल पड़ा, गोया उसे रास्ता मालूम हो। वो दरिया के किनारे किनारे एक घने जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल के दरख्त इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती। हवा में परिंदों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट थी, लेकिन इब्राहिम के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि वो अल्लाह के भरोसे पर यह सफर कर रहा है। इब्राहिम ने सफेद घोड़े की बांह पकड़ी और उसे नरमी से हाँका। घोड़ा, जिसका नाम उसने रहमत रखा था, तेजी से दरिया के किनारे चल पड़ा। सूरज अभी तुलू हो रहा था और आसमान पर हल्की सी धुंध छाई हुई थी। इब्राहिम के दिल में एक अजीब सा जोश था, लेकिन साथ ही एक खौफ भी कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दरवेश की बात उसके कानों में गूंज रही थी, तेरा ईमान तेरी सबसे बड़ी तैयारी है। जंगल की तरफ बढ़ते हुए रास्ता दिन ब दिन दुश्वार होता गया। कभी तेज धूप उसे परेशान करती, कभी अचानक बारिश उसके कपड़ों को तर कर देती, लेकिन रहमत, वो सफेद घोड़ा, हर मुश्किल में उसका वफादार साथी साबित हुआ। इब्राहिम ने अपने बस्ते से एक रोटी निकाली और खाने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास खाना अब बहुत कम बचा था। उसने अपने रब से दुआ मांगी, ए अल्लाह, तो मेरा मददगार है और मुझे इस सफर में कामयाब कर। दूसरे दिन जब इब्राहिम एक घने जंगल से गुजर रहा था, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी। वो रहमत को रोककर आवाज की तरफ बढ़ा। वहां एक बूढ़ी औरत दरख्त के नीचे बैठी रो रही थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा था जो भूख से बिलख रहा था। इब्राहिम ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? बूढ़ी औरत ने सिसकती हुई बताया कि वो अपने पोते के साथ एक करीबी गांव जा रही थी, लेकिन रास्ते में उनका खाना चोरी हो गया और अब वो भूख से नढाल हैं। इब्राहिम ने अपना बस्ता खोला। उसके पास सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा सा पानी बचा था। उसने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर वो ये खाना दे देता है तो उसके पास खाने को कुछ ना बचेगा, लेकिन उसके दिल ने कहा कि नेकी से बड़ा कोई खजाना नहीं। उसने दोनों रोटियां और अपनी मशक बूढ़ी औरत को दे दी। अम्मा ये लो, अपने पोते को खाना खिलाओ और ये पानी पियो। बूढ़ी औरत ने उसकी नेकी पर उसे दुआएं दी और कहा, बेटा तेरा दिल सोने का है, अल्लाह तेरी राह आसान करे। इब्राहिम ने मुस्कुराकर सर झुकाया और आगे बढ़ गया। अब इब्राहिम को समझ आ चुकी थी कि ये रास्ता वाकई इम्तिहानों से भरा हुआ है, क्योंकि अब उसके पास खाने के लिए कुछ ना था और अभी वो मंजिल बहुत दूर थी। लेकिन इब्राहिम ने हिम्मत ना हारी और पत्ते खाकर रात गुजार दी। तीसरे दिन इब्राहिम एक तंग वादी में दाखिल हुआ जहां चट्टानें उसके सर पर लटकती दिखाई देती थीं। अचानक रहमत ने अपने पांव रोक लिए और इब्राहिम ने देखा कि सामने एक गिरोह खड़ा है। ये जंगली चोर थे जिनके हाथों में नेज़ें और तलवारें थीं। उनके सरदार ने आगे बढ़कर कहा, ए मुसाफिर, तेरे पास जो कुछ है हमें दे दे, वरना तेरी खैर नहीं। इब्राहिम ने नरमी से कहा, मेरे पास कुछ नहीं सिवाय इस घोड़े और एक खाली बस्ते के। चोरों ने उसकी बात पर यकीन न किया और उसे घेर लिया। उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया और उसका बस्ता छीन लिया। इब्राहिम ने मुकाबला न किया क्योंकि वो जानता था कि लड़ाई से कोई फायदा न होगा। उसने अपने दिल में दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। चोरों के सरदार ने उसकी खामोशी और सब्र देखकर कहा, तो वाकई एक अजीब आदमी है, हम तुझे छोड़ देते हैं, लेकिन ये घोड़ा हम ले जाएंगे। इब्राहिम ने कहा, ये घोड़ा मेरा साथी है, अगर तुम इसे ले जाओगे तो मेरा सफर अधूरा रह जाएगा। सरदार ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अच्छा, हम तुझे और तेरे घोड़े को छोड़ देते हैं, लेकिन याद रख
ये जंगल खतरनाक है। चोर चले गए और इब्राहिम जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़ा। डाकुओं के चले जाने के बाद इब्राहिम जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। उसके जिस्म पर नीले निशान पड़ चुके थे और उसका बस्ता खाली हो चुका था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसका ईमान उसे बता रहा हो कि ये सब उसके सफर का हिस्सा है। उसने अपनी सारी ताकत जमा की और अपने वफादार सफेद घोड़े रहमत की तरफ बढ़ा। इब्राहिम ने घोड़े की बांह पकड़ी और मुश्किल से उसकी पीठ पर सवार हुआ। उसका जिस्म दर्द से चूर था, लेकिन उसका अज़्म कमजोर न हुआ। वो जानता था कि दरवेश ने उसे गार तक पहुंचने का बताया है और वो इस सफर को अधूरा नहीं छोड़ सकता। रहमत ने अपने पांव तेज किए और जंगल के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ा। जंगल अब इतना घना था कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। हवा में पत्तों की सरसराहट और परिंदों की आवाजें थीं, लेकिन इब्राहिम का दिल सिर्फ एक चीज पर मरकूज था, गार और उसका खजाना। कई घंटों के सफर के बाद जब सूरज डूबने लगा, इब्राहिम ने देखा कि सामने एक चट्टान है जिसके नीचे एक गार का मुंह दिखाई दे रहा था। इब्राहिम ने रहमत को एक करीबी दरख्त से बांधा और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रहमत, तू मेरा सच्चा साथी है, अब यहाँ इंतजार कर। इब्राहिम ने अपनी मशल रोशन की और गार के अंदर कदम रखा। गार का अंदरूनी हिस्सा ठंडा और नम था। इब्राहिम ने सोचा कि शायद खजाना इस जमीन के नीचे छुपा हो। उसने अपनी छुरी निकाली और जमीन के इर्द गिर्द मिट्टी खोदना शुरू किया। वो घंटों खोदता रहा, लेकिन उसे कुछ न मिला। पसीने से शराबूर उसने गार के दूसरे हिस्सों की तरफ रुख किया। उसने दीवारों के करीब जमीन पर और यहाँ तक के गार की छत के नीचे भी खोदा, लेकिन खजाना कहीं न था। उसका दिल मायूस होने लगा, लेकिन उसने खुद को तसल्ली दी, दरवेश ने कहा था कि ये आसान न होगा, मुझे सब्र से काम लेना होगा। इब्राहिम ने गार के हर कोने को छान मारा। वो थक कर चूर हो चुका था और उसकी मशल की रोशनी भी मध्यम पड़ रही थी। उसने एक लम्हे के लिए रुक कर अपने रब से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, मेरी रहनुमाई फरमा, अगर ये खजाना मेरे नसीब में है तो मुझे इस तक पहुंचा। दुआ मांगते हुए उसकी नजर गार के दाएं कोने पर पड़ी, जहां मिट्टी कुछ नरम और गहरी दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि शायद ये कोई इशारा है। वो उस जगह पर गया और अपनी छुरी से खोदना शुरू किया। मिट्टी वाकई नरम थी, जैसे किसी ने इसे पहले खोद कर दोबारा भरा हो। जितना वो खोदता गया, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। अचानक उसकी छुरी किसी सख्त चीज से टकराई। उसने एहतियात से मिट्टी हटाई तो उसे एक बड़ा सा संदूक नजर आया। संदूक लकड़ी का था, लेकिन उस पर सोने और चांदी के पत्थरों से नक्शो निगार कुंदा थे। इब्राहिम ने संदूक को बाहर निकाला और उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती पत्थर चमक रहे थे। ये एक ऐसा खजाना था जो उसे रातों रात दोबारा अमीर बना सकता था। इब्राहिम ने खजाने को देखा और अपने रब का शुक्र अदा किया। उसने संदूक को बंद किया और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा कि ये खजाना अल्लाह की अमानत है, मैं इसे अपने लिए नहीं बल्कि उसके बंदों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगा। इब्राहिम ने संदूक को रहमत की पीठ पर लादा और अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। वापसी का सफर मुश्किल था, क्योंकि खजाने का वजन रहमत के लिए बोझल था, लेकिन रहमत ने अपनी वफादारी दिखाई और एक एक कदम आगे बढ़ता रहा। रास्ते में इब्राहिम को कई गरीब मुसाफिर मिले। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर उन्हें दिए और कहा, ये लो, अपनी जरूरतें पूरी करो। हर मुसाफिर उसकी नेकी पर हैरान होता और उसे दुआएं देता। जब इब्राहिम गांव वापस पहुंचा तो उसकी बीवी ज़ैनब ने संदूक देखकर हैरत से पूछा, ये क्या लाए हो? क्या ये वही खजाना है? इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ज़ैनब, ये वो खजाना है जो अल्लाह ने हमें अता किया, लेकिन ये हमारे लिए नहीं बल्कि उन गरीबों के लिए है जो हमारे इर्द गिर्द भूख और अफलास में जिंदगी गुजार रहे हैं। ज़ैनब ने पहले तो हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, इब्राहिम, तुम वाकई बदले नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारी नेकी की कदर करती हूँ। इब्राहिम ने गांव वालों को जमा किया और ऐलान किया, ये खजाना अल्लाह की अमानत है, मैं इसे तुम सबके साथ बांटूंगा। हम इससे अपने गांव को खुशहाल बनाएंगे। इब्राहिम ने खजाने के सिक्कों से गरीबों के लिए खाना, कपड़े और दवाइयाँ खरीदी। उसने बेघर लोगों के लिए छोटे छोटे घर बनवाए, बीमारों के लिए एक छोटा सा शफाखाना कायम किया और बच्चों के लिए एक मदरसा बनाया जहां वो मुफ्त तालीम हासिल कर सकते थे। उसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हमेशा गरीबों पर खर्च किया और उसकी नेकी का सिलसिला कभी न रुका। इब्राहिम की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे एक नेक दिल ताजर के तौर पर याद रखने लगे, जिसने खजाने को गरीबों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया और अपनी नेकी का सिलसिला कभी न छोड़ा। उसकी जिंदगी से ये सबक मिला कि नेकी, सब्र और अक्ल इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं और अल्लाह का रिज़्क कभी बंद नहीं होता जब बंदा उस पर भरोसा रखे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी।
पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल कारवाने उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।